Good morning student. Now I am continue here to give you the third video of the lesson. My dear students, up to now we have discussed till about the demand deposit or check. Okay, so students, if you see the loan activity of bank, the bank students, how they it earn the money and how it mediate with those who deposit money in the bank and who take loan from the bank. So I mean to say that bank only play a role of mediator. Bank only play a role of mediator between depositor and loaner students. Okay, and the differences of interest rate between depositor and the loaner is the actual profit of the bank, okay. So formal credit sector is also known as organized sector. It is called the organized sector. It is because it follow the guideline issued by the government. RBI is the apex level of bank in India. Every bank of India have to deposit some of its percentage to RBI. RBI monitor, देखो यहाँ पर आप फंक्शन ऑफ RBI भी इसे निकाल सकते हैं कि RBI is the apex bank of India. It monitor all the formal sector of bank in India, है ना. It issue the guideline for all the bank. Every bank have to deposit certain percentage of its deposit to RBI. RBI students maintain the minimum cash balance of every bank. It also supervise whether the bank is only giving loan for the profit for the industry or to the farmer also. ठीक है, तो that is the students function that RBI has in India. Okay, तो the commercial bank, देखिए लोन एक्टिविटी स्टूडेंट्स ऑफ द बैंक, हमने अभी आपको बता रहा था कि बैंक ओनली प्ले the role of mediator between the depositor and the loaner, and the interest rate, differences of interest rate between the loaner and depositor is the actual profit of the bank. Okay student, this is the bank and I am going to discuss the loan activity of the bank, that how bank offer the loan. Okay student, so you can find here that it play only the mediator between the depositor and the loaner students. It only play. So there is an interesting mechanism at work here, that how the bank students make a loan activity. Bank keep only a small proportion, 15%, only a small proportion students, 15% as its deposit, and rest students it give loan to the loaner. Okay, so bank students in India this day hold amount only 15%, just before I was telling you students, and rest 85% it offer loan to the peoples. तो दिस इज कैप्ट एज प्रोविजन. देखिए ये 15% इसे रखा जाता है कि आपने पैसा जमा किया तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है स्टूडेंट्स निकालने के लिए, तो आप उसको निकालिएगा. तो यही 15% मनी से जो है वो लेन देन करता है, क्योंकि सबके सब तो एक दिन आ जाएंगे नहीं निकालने के लिए. ठीक है ना. तो इस प्रकार से जो है वो बैंक अपना लोन ऑफर करता है, लोन वो देता है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो बैंक रियली स्टूडेंट्स मैडिएट बिटवीन द लोनर and the depositor. तो बैंक स्टूडेंट्स हाउ इट मैनेज दैट इट ऑफ इशू द लोन फॉर द वेरियस पर्पस, यू कैन सी, है ना, फॉर द फार्मिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एवरी एक्टिविटीज इट गेव द लोन, है ना. एंड थ्रू दैट लोन स्टूडेंट्स बैंक मेक ए प्रॉफिट, और इसी लोन के द्वारा बैंक जो है वो अपना प्रॉफिट लेता है स्टूडेंट्स. आप अक्सर देखते होंगे बैंक का, है ना. तो ये स्टूडेंट्स जो है ना वो दोनों को मेडिएट मिलाता है. आप देखिए टीवी पर अक्सर प्रचार देखते होंगे, घर बनाने के लिए लोन लीजिए,
है ना, ऑफर द लोन स्टूडेंट्स, है ना, फॉर द वेरियस पर्पस। तो दैट एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट द पीपल्स लाइक द देना बैंक हो गया, एस बैंक हो गया, है ना, अट्रैक्ट द पीपल टू टेक द लोन बिकॉज इट मेक ए मैक्सिमम प्रॉफिट and that's the profit students because the rate of interest, है ना, the bank offer a very little interest to the depositor and charge the students high interest to the loaner and that is the actual profit of the bank। और यही जो है वो बैंक का एक्चुअल प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन वेरी लो, है ना, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज एक्चुअल स्टूडेंट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। कॉमर्शियल बैंक, ओके, इट स्टूडेंट्स टेक मनी फ्रॉम द डिपॉजिटर वन हु हैज सरप्लस इनकम एंड इट इशू लोन टू नीडी पीपल, ओके। तो देर आर द टू फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक स्टूडेंट्स इन इंडिया। There are the two functions of commercial bank in India: accepting deposit and advancing loan. Accepting deposit and advancing loan. Okay. So what are the different ways in which the bank accept deposit from the people? तो first of all students fixed और time deposit account। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये पर्सन स्टूडेंट्स certain money deposited in the bank for the certain period of time, okay। so the people students make a fixed deposit because he has surplus income and the bank offer the maximum interest over the fixed deposit, है ना। ये क्या फिक्स डिपॉजिट हो जाते हैं 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितना भी आप कर सकते हैं। तो लोग करते हैं क्योंकि उनके पास सरप्लस इनकम होता है और बैंक इस पर स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेस्ट भी देती है, इसलिए लोग करते हैं इसको। दूसरा स्टूडेंट्स करेंट डिपॉजिट को ही डिमांड डिपॉजिट कहते हैं स्टूडेंट्स, है ना। दैट पीपल इफ हैव सरप्लस मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड एट द टाइम व्हेन दे नीड दे स्टूडेंट्स विथड्रॉ इट, ओके। तो बैंक स्टूडेंट्स आल्सो हैव current account too and saving account, and where the people or students some certain money deposited periodically there to get a better interest there, okay। so these are the students means deposit accepted by the bank। and the third deposit students is called the recurring deposit account। under this account the person have to deposit a certain money every month there, ठीक है। एवरी मंथ जो आपसे होता है 100 रुपया, 200 रुपया, 1000, 2000, है ना। और दिस इज स्टूडेंट्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, यू कैन से फॉर 1 year, 2 year, 3 year और 5 year, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। टू फंक्शन स्टूडेंट्स दे आर, ठीक है, accepting deposit and advancing loan। another primary function of a commercial bank students is to advance loan to the people, है ना, ये लोगों को लोन ऑफर करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देर आर द आल्सो स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन गिवन बाय द बैंक। फर्स्ट कैश क्रेडिट, पहला लोन एक क्या है, कैश क्रेडिट। द borrower is sanctions a certain amount of loan on a given security। देखिए बैंक स्टूडेंट्स नॉट गिव any of the money without any security, ठीक है। the bank students have to get security for the means offering loan there, ठीक है। तो आप कभी कभी क्या होता है कि आप सिक्योरिटी दिए वहाँ पे, कोई आप लैंड दे सकते हैं, ज्वेलरी दे सकते हैं एज ए सिक्योरिटी, ठीक है। और वो सिक्योरिटी को स्टूडेंट्स उसके एवेज में बैंक जो है वो लोन ऑफर करता है, ठीक है। Second students loan on and advance, these loan are sanctions for a fixed amount borrower can withdraw at it any time, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट भी होता है, जैसे आप कोई सामान वगैरह निकालना चाह रहे हो कहीं बैंक्स वगैरह से, तो उस पर स्टूडेंट्स को लोन दे देता है। तो these are the different, है ना, these are the different
loan means loan activity of the bank through which a bank students pay loan to the people. Okay, तो what you came to know students that, अब देखिए इसी में एक और टॉपिक था, टू डिफरेंट सिचुएशन और कंडीशन ऑफ लोन एक्टिविटीज। देखिए क्रेडिट इज नॉट ऑफन इज फुल, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि क्रेडिट इज नॉट ऑफन इज फुल, जस्टिफाई इट, आपको जस्टिफाई करना है। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स कि दो एग्जाम्पल ले लेना है, ठीक है, जैसे आपके बुक में दिया हुआ स्टूडेंट्स, एक शू मेकर का है दैट गोट ऑर्डर स्टूडेंट्स फ्रॉम ए लार्ज कंपनी फॉर द मीन्स पेयर ऑफ शू। तो वो क्या करता है ना, देखिए फेस्टिवल टाइम है, उसको जूते का ऑर्डर मिला, वो जूता बनाता है। तो उसने क्या किया कि देखिए क्रेडिट डिफरेंट टाइप से हो सकता है। क्रेडिट का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि आपको पैसा ही मिले। आप शू मेकर का केस स्टडी देख लीजिए, तो उस केस स्टडी में देखिए कि हाउ ही हैज मीन्स गोट द क्रेडिट, उसने क्रेडिट कहाँ से लाया, ठीक है, कुछ एडवांस मनी ले लिया जो जूते का ऑर्डर दिया था उससे, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स लेदर वाले से एडवांस पेमेंट पे ले लिया कि भाई तुमको बाद में पैसा देंगे, ठीक है। तो पहले तो एडवांस जो उसने जूता बनाने दिया उससे एडवांस मनी ले लिया, उसके बाद लेदर वाला से एडवांस मनी ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है, और वर्कर को कुछ दे लेकर अपना जूता बना दिया, है ना। When he completed his order students, he got rest cash from the people students who ordered him, ठीक है। तो he got profit there and credit is useful here। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट अच्छा है, क्योंकि उसको ऑर्डर मिल गया, क्रेडिट लेके सामान तैयार कर दिया, बेच के पैसा ले लिया, उसको प्रॉफिट हो गया। बट द वेरी सेम टाइम देयर वुड यू सी द एग्जाम्पल ऑफ ए फार्मर, ठीक है। फार्मर के क्या है कि स्टूडेंट्स हमने लोन लिया, आई हैव ऑब्टेन क्रेडिट फॉर द पैडी क्रॉप्स, राइस क्रॉप्स, तो हमने राइस क्रॉप्स के लिए क्रेडिट लिया, मीन्स अनफॉर्चुनेटली द क्रॉप्स दैट ईयर फेल्ड, दुर्भाग्य से उस वर्ष फसल जो है बर्बाद हो गई। नाउ आई विल नॉट बी एबल टू पे माई लोन अमाउंट टू द बैंक, और हम बैंक को लोन अमाउंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देयर व्हाट हैपन दैट आई विल बी द डिपॉजिटेड more and more bank and for the another wheat I have to take the loan। अब गेहूं के लिए हमको लोन लेना है, तो in that condition students, है ना, the borrower students comes under the extreme debt, ठीक है ना, extreme debt, and this time it became curse and credit became curse for the farmer। और credit जो है वो ये हो जाता है and that is called the debt trapped। debt trapped, डेट ट्रैप्ड क्या है, इट इज ए कंडीशन और सिचुएशन फ्रॉम वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बोरोवर टू कम ओवर। एक ऐसी स्थिति हो जाती है जहां से बोरोवर बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होती है उसको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज यहीं तक हम रोकते हैं, फिर हम देखेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैसे देता है, कोलेट्रल लेकर देता है, क्या करता है, ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।